السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 143 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 144 کریں گے، اور یہ ہے پارہ نمبر 2 جو کہ شروع ہو گیا ہے۔ تو آج ہم 144 آیت کو پورے تجوید و قواعد کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے اور اس سے آپ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں۔ میری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کرے صدقہ جاریہ کی نیت سے، تاکہ جو لوگ بھی آپ کے شیئر کرنے سے اس سے کچھ بھی سیکھے، ان سب کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ تو میں نے پوری آیت کو تلاوت کی ہے۔ یہ آیت تقریباً 3.5 لائنز کا ہے، 3.5 لائن کا۔ تو اس کو ہم کریں گے، ویڈیو شاید کافی زیادہ لمبی ہو جائے، کوئی بات نہیں، پھر بھی میں تفصیل سے سمجھاؤں گی، کیونکہ جب تک میں تفصیل سے نہیں سمجھاتی تو مجھے خود بھی چین نہیں آتا۔ تو ہر ایک چیز کو واضح کر کے میں سمجھاتی ہوں۔ اگر آپ کو لگے کہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا اسکپ کر کے دیکھ لیں، کوئی بات نہیں، لیکن پورا دیکھیں گے تو آپ کو پوری بات واضح طور پر سمجھ آئے گی۔ ویسے آپ کی مرضی، جس طرح چاہیں آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں، پہلا لفظ قد، کیا ہے؟ قد۔ سب سے پہلا حرف جو ہے قاف ہے، اور دوسرا لفظ حرف جو ہے وہ ہے دال۔ تو قاف کو دال سے ملائیں گے، پہلا حرف قاف وہ ہے موٹے حرف میں سے، تو اس کو آپ موٹا کر کے ادا کریں۔ قاف دال زبر قد، کیا بولیں گے؟ قاف دال زبر قد۔ اب دال کے اوپر سکون آ گیا، دال کے اوپر جزم دکھ رہا ہے نا، جزم اور سکون ایک ہی چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ کو نشان دکھ رہا ہے نا، یہ جو ایک آپ کو علامت دکھ رہی ہے، علامت، اسے کہا جاتا ہے سکون اور جزم، دونوں اسی کا نام ہے۔ جزم اردو میں کہتے ہیں اور سکون عربی میں کہتے ہیں۔ تو دال کے اوپر سکون آ گیا، اور دال حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، تو جب ہم قاف کو دال سے ملائیں گے تو اپنی آواز کو کیا کریں گے؟ ٹکرائیں گے، ہلائیں گے، ایسا معلوم ہوگا کہ ہم دال کو 2 مرتبہ ادا کر رہے ہیں، جیسے کہ قد، قد نرى، قد 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 قد، ایسا۔ اس کے بعد نرى، نون زبر نا، را کھڑا زبر را، را کو موٹا بھی ادا کرنا ہے۔ دوسری چیز کہ را کو 1 الف کے برابر لمبا بھی کرنا ہے، کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر آ گیا۔ اور کھڑا زبر کا کیا قاعدہ ہے کہ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے۔ تو الف مدہ کو جیسے پڑھتے ہیں اور جس طریقے سے اس میں آواز آتی ہے، ویسے ہی ہم کھڑا زبر کو بھی پڑھتے ہیں۔ تو جب دونوں کو پڑھیں گے، قد نرى، قد نرى،
समझ आ गई। आगे तक़ल्लुब, ता ज़बर ता, क़ाफ़ लाम ज़बर क़ल, तक़ल लाम पेश लू, बा ज़बर बा, तक़ल्लुब, तक़ल क़ल क़ल, क़ल नहीं बोलना, क़ल क़ल गोल करते हुए, तक़ल्लुब तक़ल्लुब। ठीक है, आगे वजहिका, वाव जीम ज़बर वज, हाज़िर ही, काफ ज़बर का, वज ही का कैसे अदा हो रहा, गौर से सुने, वज ही का वज, वज ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जीम के ऊपर सुकून आ रहा है और जीम हरूफ कलकला में से एक है। यहां पर आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने बताना है कि हरूफ कलकला कितने हैं और क्या क्या हैं, वो हरूफ क्या क्या हैं वो आप कमेंट में लिखिए, कितने हैं और कौन कौन से हर्फ है। ठीक है, आज का ये सवाल है, आप लोगों को जवाब देना है। तो यहाँ पर हमने फिर से कलकला किया, वज वज ही का, ये ही दूसरा है। ठीक है, हा ये है हा और एक होता है हा। ठीक है, तो यहाँ पर हा बोलेंगे, ही का, वज ही का, वज ही का। आगे फिस फिस समा, फा सीन ज़ेर फिस, सीन ज़बर सा, मीम अलिफ मद ज़बर मा, हमजा ज़ेर ई। लेकिन यहाँ पर अगर स्टॉप करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, हमजा के ऊपर सुकून लाएंगे, हमजा साकिन हो गया तो अब झटका से इसको हल्का अदा करते हुए हम स्टॉप करेंगे। जैसे कि वजही का फिस समा, समा, समझ आ रही, हमजा को झटके के साथ अदा करते हुए स्टॉप करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब पूरी यहाँ तक देखें, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, फिस्समा ऐसा। ठीक है, यानी कि हमजा भी अदा होगा। आगे फलनुवल्लियन्नका, फा ज़बर फा, लाम ज़बर ला, फला, नून पेश नू, वाव लाम ज़बर वल, फलनुवल, लाम ज़ेर ली, या नून ज़बर यन, नून ज़बर ना, काफ ज़बर का। यहाँ पर किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखना, बल्कि एक चीज़ का ख्याल आप रखेंगे कि नून के ऊपर शाद है, यहाँ पर देल लगाना है, यानी कि एक अलिफ के बराबर यहाँ पर गुन्ना करेंगे, बाकी कहीं पर नहीं रुकना। तो ये लफ्ज़ कैसे अदा होगा, फलनुवल्लियन्नका, फलनुवल्लियन्नका, कहाँ देर लगा रहे, इस नून में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर शाद है। और बताया था मैंने कि नून के ऊपर शाद आ जाए या मीम के ऊपर शाद आ जाए तो आपको गुन्ना करना पड़ता है, नून पर आने से नून मुशद्दद का गुन्ना और मीम पर आने से मीम मुशद्दद का गुन्ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम गुन्ना कर रहे हैं। आगे क़िबलतन तरज़ाहा, क़ाफ बाज़िर क़िब, फिर बा के ऊपर सुकून आ गया तो यहाँ पर फिर कलकला करेंगे क्योंकि बा भी हरूफ कलकला में से है। ठीक है, क़िब क्या पढ़ेंगे, क़िब क़िब क़िब, ला तंग तंग, क्योंकि दो ज़बर की तनवीन के बाद हर्फ ता आ रहा है तो यहाँ पर हम इख्फा करेंगे, क़िबलतन तंग, नाक में नून की आवाज़ को छुपाएंगे जो कहलाती है इख्फा करना। तो हम पढ़ेंगे क़िबलतन तरज़ाहा, तर, रा को मोटा करेंगे, फिर रा सुकून और उससे पहले ज़बर, रा साकिना से पहले ज़बर या पेश आ जाए रा मोटा होगा, अगर रा साकिना से पहले ज़ेर आ जाए तो इस रा को बारीक रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मोटा होगा। उसके बाद ज़ोहा, ज़ाद ज़बर ज़ो, ज़ाद खड़ा ज़बर ज़ो, ज़ो ज़ो ज़ो, हा अलिफ ज़बर हा, ज़ाद को मोटा अदा करना है, पहली बात। दूसरी बात के खींचना भी है एक अलिफ के बराबर। अब यहाँ तक देखें, फलनुवल्लियन्नका
قبلة ترضاها. ایک بار پھر دیکھیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا تَرْضَاهَا تَرْضَاهَا. سمجھ آ رہی؟ را کو بھی موٹا اور ضاد کو بھی موٹا. آگے فَوَلِّ، فا زبر فا، واو لام زبر ول، فَول لام زیر لی، فَوَلِّ. بالکل سمپل، بالکل آسان. آگے وجہک، ٹھیک اسی طریقے سے جیسے یہاں پر ہم لوگوں نے ادا کیا، صرف یہاں پر ہا کے نیچے زیر ہے اور یہاں پر ہا کے اوپر زبر ہے، تو اسی طریقے سے ادا کرنا ہے. پہلا جیم میں قلقلہ، ہا کا کو جلد. وجہک، وجہ وجہ وجہک. سمجھ آ رہی؟ اس کے بعد شاطرل، شین طا زبر شاط، طا میں پھر قلقلہ کریں گے کیونکہ تا حروف قلقلہ میں سے ایک ہے. شاق 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 شاق، ایسا. ٹھیک ہے، طا موٹے حروف میں سے ہے لہٰذا موٹا رہے گا اور قلقلہ بھی ہوگا، یعنی کہ آپ کی آواز ٹکراتی ہوئی آپ کی طرف آئے گی. شاق شاق شاق. سمجھ آ رہی؟ شاق رل، رل، را کو بھی موٹا، رل رل مسجد الحرام. شاطرل شاطرل مسجد الحرام. تو یہ سمجھ آگے کہ تو میں قلقلہ اور را کو موٹا کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. موٹا کرتے ہوئے ہم لام میں ملا رہے ہیں رول. اس کے بعد مس، میم سین زبر مس، سیٹی کی آواز ظاہر، مسجد الحرام. یہ کون سا حرف ہے؟ ہا. کیا ہے؟ ہا. آپ لوگوں کو صاف و کلیئر آواز آ رہی ہوگی کہ جب اس حرف کو ادا کرتے ہیں تو سینے سے ایک سینے کی طرف جو اندرونی حصہ ہے وہاں سے ادا ہوگا، اور جب بھی اس حرف کو ادا کریں گے حلق سے ایک ہوا کی سی آئے گی، جیسے کہ ہا ہا ہا، ایسا. تو جب ہم پڑھیں گے اس کو شطر المسجد الحرام، حرام، را کو کھینچیں گے بھی کیونکہ الف مدہ ہے، الف خالی اس سے پہلے زبر، اور را موٹا بھی ہوگا اور کھینچا بھی جائے گا. میم کے اوپر ہم وقف کریں گے تو میم کے نیچے زیر ہٹ جائے گا اور اوپر ہم سکون لگائیں گے یعنی کہ جزم ڈالیں گے. آگے اچھا پوری آیت کو دیکھیں یہاں سے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. آگے وَحَيْثُ، واو زبر وا، ہا یا زبر ہائی، سا پیش سو، سو. کیا پڑھیں گے؟ سا پیش سو، سو. سو نہیں بولنا، سا پیش سو. یہاں پر اگر سا بول رہے آپ، اگر سا سا ایسا اگر بول رہے نا، سا سیٹی والی اگر آواز آ رہی ہے تو یہ حرف آپ کا غلط نکل رہا ہے. حرف سا میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. وَحَيْثُ سو سو سو. اگر آپ کو ہر حرف کا مخرج سیکھنا ہے، ایک ایک حرف کا الگ الگ اگر آپ کو مخرج سیکھنا ہے تو آپ میری شارٹس ویڈیو کو جا کر کھنگال ڈالیں. ہر حرف کا مخرج میں نے الگ الگ سے ویڈیو بنا کر ایک ایک منٹ کا اس میں پورے طور پر میں نے وضاحت کی ہے کہ کیسے کس حرف کو ادا کریں گے، کس حرف کا مخرج، حلق کے کون سے حصے ہیں، وہ ساری میں نے تفصیل سے بتائی ہے ایک منٹ کی ویڈیو میں. تو آپ جا کر میری شارٹس ویڈیو کو چیک کریں، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا میری شارٹس ویڈیو سے. تو بہرحال یہاں پر سیٹی والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، سیٹی والی آواز نہیں آنی چاہیے. وَحَيْثُ سو سو. آگے اچھا یہاں پر ہائی میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے وہ غور کریں. یہاں پر دیکھیں یا ساکین ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، یہاں پر ہم یا لین کر رہے، نرمی کے ساتھ ہم جلد ادا کریں گے. آگے مَا كُنْتُمْ
तुम। तो यहाँ पर देखिए मीम अलिफ जबर मा क्या करेंगे, अलिफ मद्दा करेंगे, उसके बाद काफ नून पेश कुम, ता मीम पेश तुम। अब यहाँ पर नून साकिन है, नून साकिन के बाद हर्फ ता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इख्फा करेंगे और ता को फिर मीम से मिला देंगे। वहैसुमा कुंतुम, 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 ठीक है, इस तरीके से। आगे फवल्लू, फा जबर फा, वाव लाम जबर वल, लाम वा पेश लू, फवल्लू, लू में प्रेशर डाल रहे, क्यों, क्योंकि वाव साकिन उससे पहले पेश, वाव मद्दा। और वाव मद्दा को कैसे पढ़ने का हुक्म है, एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ने का हुक्म है। तो फवल्लू वुजूहकुम, वाव पेश वू, जीम वाव पेश जू, वुजूहकुम। अब देखिए बाज औकात लोग ना यहाँ पर उजू बोलते हैं, उजूहकुम ऐसा बोलते हैं, तो गलत है। आवाज में देखिए, आवाज में फर्क देखिए, उजू कब होगा, जब यहाँ पर हमजा होता है ना, हमजा होता जब यहाँ पर, तब हम उजू बोलते। यहाँ पर वाव है तो हम क्या बोलेंगे, वुजू, वापेश वू, 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 बिल्कुल उलटते हुए, ऊ और वू, ऊ इधर से मिल रहा है दाहिनी तरफ से, ऊ, और वू बिल्कुल उलट दे, बिल्कुल उलट दे, अपोजिट साइड, वू, वू, ऊ, वू। तो यहाँ पर क्या है, सेकंड वाला वू, वूजू, वूजू, वू को जल पड़ेंगे, जू को खींचेंगे क्योंकि वाव मद्दा हो रहा है। हकुम, वूजू हकुम, वूजू हकुम, शक़रा, शक़, 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 रह, 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 शीन को ता से मिलाया, कलकला किया, रा को हा से मिलाएंगे क्योंकि जब हम यहाँ स्टॉप करेंगे तो हा का जो उल्टा पेश है वो हट जाएगा, और यहाँ पर हम सुकून लगाएंगे यानी कि जज्म लगाएंगे। अब जब सुकून या जज्म आ गया तो सिर्फ हा को पढ़ना है, रा को हा से मिलाते हुए। तो जब रा को हा से मिलाकर पढ़ते हुए स्टॉप करेंगे तो हा भी साफ और वाज़ेह तौर पर अदा होनी चाहिए। बाज़ औक़ात हा अदा नहीं होता, जैसे लोग पढ़ते शातरा, क्या पढ़ेंगे, शातरा, मतलब कि रा जबर रा तक पढ़ रहे हैं, हा हज़फ, तो हा को भी अदा करेंगे, शातराह, राह, राह, ऐसा ऐसा साउंड आना चाहिए, ठीक है। वुजूहकुम शतराह, राह, 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 समझ आ रही आवाज साफ। यहां से देखें, वहैसुमा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शतराह, 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 ठीक है, साफ और क्लियर। आगे वइन्नल्लज़ीना, नून मुशद्दद का गुन्ना, नल्लज़ीना, ज़ी में या मद्दा, और कहीं पर कुछ नहीं करना। वइन्नल्लज़ीना, नून मुशद्दद का गुन्ना किया, फिर लाम से मिला दिया, फिर लाम को जबर के साथ पढ़ा, फिर ज़ी में हम या मद्दा करके नून जबरना। जाल को कैसे अदा करना, बहुत ही नरमी के साथ बारीक अदा करना, ठीक है। जाल और सा, ये जो हर्फ सा है और जाल दोनों का मखरज एक ही है, दोनों में सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर मखरज नहीं पता तो या तो आप मेरे मखारिज वाला जो लेसन है उसकी वीडियो देख ले, या अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते, वीडियो लंबी होती है इस वजह से, तो आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो देख ले, 1 मिनट में आपको एक हर्फ का मखरज समझ आ जाएगा। नीचे आ जाइए, ऊतुल किताब, हमजा वा पेश ऊ, तालाम पेश तुल, ऊतुल, ऊतुल, ऊतुल किताब, किताब, ऊ में खींच रहे, ता में खींच रहे, बाकी कहीं नहीं खींचना, ठीक है। आगे ऊ में क्या हो रहा है, समझ आ गई कि वाव साकिन उससे पहले पेश,
वाव मद्दा। यहाँ पर खड़ा ज़बर का कायदा। आगे लयअलमूना, लयअलमूना, यहाँ पर देखिए ये जो यअलमूना जो लफ्ज़ है ना, यअलमूना या यअमलूना, इस तरीके से जो लफ्ज़ आते हैं ना जिसमें आइन होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए यअलमूना है और नीचे आ जाइए तो ये देखिए यअमलूना है। तो ये जो आइन हर्फ के साथ जो लफ्ज़ बनकर आता है ना, तो वो बाज़ लोग जब निकालते हैं तो आइन नहीं निकलता उनकी। तो इसके लिए आपको खूब मश्क करना होगा। जैसे कि मश्क करने की क्या सूरत होगी वो मैं आप लोगों को वाज़े करूँ। जैसे कि देखिए बाज़ औक़ात लोग इसको पढ़ेंगे लयअलमूना या लयअलमूना, लयअलमूना, यानी कि आइन उनका हज़फ। तो उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि हिज्जे करे पहले। लाम ज़बर ला, या आइन ज़बर या, ला या, ला या, ला या, इसको 10 टाइम्स करें, उसके बाद आगे बढ़े। लाम ज़बर ला, ला या ला, ला या, मीम वाव पेश मू, ला यअलमू, ला यअलमू, ला यअलमू, इसको भी 10 टाइम्स। नून ज़बर ना, ला यअलमूना। तो आइन इस तरीके से मैं टिप्स बता रही हूँ कि किस तरीके से जो चीज़ें नहीं निकलती है, जो चीज़ें वाज़े नहीं होती है, साफ नहीं होती है, उसको किस तरीके से सही करना है। ये मैं आप लोगों को तरीक़ा बता रही हूँ कि इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका दुरुस्त हो जाएगा। क्योंकि हमने भी जब पढ़ा है ना, तो हमारे असातिज़ा किराम ने भी हमें जो टिप्स दिए थे, जो तरीक़े बताए थे, तो इसी तरीके से थे। हम भी कोई सीख कर नहीं आए, हम लोगों ने भी इसी दुनिया में सीखा है ना। हम लोगों ने भी अपने उस्ताद को फॉलो किया, उन्होंने जो चीज़ें बताई उस पर हम लोगों ने अमल किया, तभी हम सीख पाए। तो इस तरह से कोशिश करते करते, लेकिन हाँ मेहनत करनी होगी, बग़ैर मेहनत के कोई चीज़ हासिल नहीं होने वाली। तो मेहनत आपको करना है ज़रूर भी ज़रूर। तो जो चीज़ें मैं टिप्स बताती हूँ ना, उस पर अगर आप अमल करें ज़रूर भी ज़रूर आप सही कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे लयअलमूना, लयअलमूना, मुँह में वाव मद्दा कर रहे। उसके बाद अन्नहुल हक़्क़ु, अन, नून मुशद्दद का गुन्ना, नहुल हक़, हक़्क़ु, 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 हा भी निकालना है और काफ भी निकालना है। हक़्क़ु, आगे मिर रब्बिहिम, यहाँ देखिए नून साकिन, उसके बाद हर्फ रा आ रहा है। ये इदगाम ताम का कायदा है, यानी कि इदगाम तो करेंगे लेकिन गुन्ना नहीं करना। तो इदगाम तो करेंगे का क्या मतलब है? इदगाम तो करेंगे क्या मतलब कि मिलाएंगे। इदगाम की क्या माना है? यहाँ पर एक चीज समझे, इदगाम 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 करेंगे करेंगे जो मैं कहती हूँ, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो जाए कि इदगाम है क्या। इदगाम के माना है मिलाना। क्या माना है? मिलाना। तो यहाँ पर मिलाएंगे लेकिन गुन्ना के साथ नहीं, बल्कि बगैर गुन्ना के, यानी कि मिलाते हुए जल्द निकल जाएंगे। गुन्ना करने का मतलब है रुकना, नहीं गुन्ना करने का क्या मतलब है कि जल्दी निकल जाना। बिल्कुल आसान है, अगर आप समझे तो बिल्कुल आसान है तजवीद को समझना। बस आपको गौर और ध्यान से आपको सुनना है। मेरा जो लेसन है ना, उसको गौर और ध्यान से अगर आप सुने तो आप आधी से ज्यादा चीज आप सीख सकते हैं इस लेसन के जरिए। तो इदगाम करेंगे यानी कि मिलाएंगे लेकिन गुन्ना नहीं करेंगे, जल्द निकलेंगे। जैसे कि मिर रब्बिहिम, रा को मोटा भी रखना है, फिर रा बाज़बर रब, बाज़र भी हामिम ज़हीम, मिर रब्बिहिम, ऐसा करना। अगर कोई यहाँ पर पढ़े मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम, यानी कि रा में इतना देर रुकावट करे तो वो गलत कर रहा है, वो ऐसा ना करे। ठीक है, तो यहाँ तक देखें। वइन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़
मिर रब्बिहिम। आगे वमल्लाहु, वाव ज़बर वा, मीम लाम ज़बर मल, वमल, लाम खड़ा ज़बर ला, हा पेश हु, वमल्लाहु। लफ्ज़ अल्लाह का लाम मोटा, क्यों मोटा? क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले क्या है? ज़बर है। अगर यहाँ पर पेश होता तो भी इसे हम मोटा करते, लेकिन अगर मीम के नीचे ज़ेर होता तो हम इसको बारीक करते। तो यहाँ पर क्या करेंगे? मोटा करेंगे। वमल्लाहु, वमल्लाहु, ला हु। आगे बिगाफिलिन, बाज़िर बी, गैन अलिफ ज़बर गा, बिगा, फाज़िर फी, लाम दो ज़ेर लिन, बिगाफिलिन, बिगाफिलिन अम्मा, अम्मा। अब यहाँ पर एक चीज देखें, बिगा में अलिफ मद्दा, अलिफ खाली, उससे पहले ज़बर, फाज़िर फी, लाम दो ज़ेर लीन, दो ज़ेर की तनवीन के बाद हर्फ आइन आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कायदा हो रहा है? इजहार का कायदा हो रहा है। तो इजहार करेंगे, यानी कि नून की आवाज को जाहिर करना है। इजहार जब आ जाए ना, इजहार का कायदा, तो ज़हन में ये बात ले आए कि यहाँ पर देर नहीं करना, यहाँ पर बिल्कुल जल्द निकलना है पढ़कर, ठीक है। उसके बाद अम्मा, मीम मुशद्दद का गुन्ना, एक अलिफ रुकेंगे, अम्मा, अम्मा। अब ये जो लफ्ज है अम्मा, यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं? ये जो आइन है, आइन नहीं निकलता, पढ़ते अम्मा। क्या पढ़ते हैं? अम्मा। गोया के यहाँ पर आइन नहीं बल्कि हमजा आ गया, तो गलत हुआ ना। किसी भी हर्फ को किसी हर्फ से चेंज कर देना, ये तो गलती है ना। इसे दुरुस्त करनी होगी। दुरुस्त करने के लिए क्या करना होगा? हमें मेहनत करना होगा। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक ये दुरुस्त नहीं हो सकता। अब लोग ये कहें कि हमारा तो आइन निकलता ही नहीं, तो ये कहने से नहीं चलेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम कैसे दुनिया सारी चीज़ें सीखते हैं ना, क्या पता नहीं दुनियावी चीज़ें क्या कुछ नहीं सीख लेते, तो फिर ये चीज़ें क्यों नहीं सीख सकते? अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब हम क्यों नहीं सीख सकते? ताज्जुब है मुझे इस बात पर। क्यों? क्योंकि हम इसमें दिल ही नहीं लगाते। अगर हम दिल लगाए ना, जिस चीज़ में हम दिल लगाते हैं ना, और जिस चीज़ से मोहब्बत करते हैं, वही चीज़ हमारे अंदर आती है। तो अल्लाह का कलाम से मोहब्बत करें, अल्लाह की किताब से मोहब्बत करें, पढ़ें, खुशी खुशी पढ़ें, तो देखें कैसे आपको आएगा। हर हर्फ को आप निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा याअमलून, याअमलून, या आइन ज़बर या आइन ज़बर या, मीम ज़बर मा, याअमा, लाम वा पेश लू, याअमलू, याअमलू, नून ज़बर ना, याअमलूना, याअमलूना। देखिए मैंने प्रैक्टिस करके भी आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको मेहनत करनी है। तो यहाँ तक पढ़ेंगे वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा याअमलून। तो आयत नंबर 144 यहाँ पर होता है मुकम्मल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम 145 पढ़ेंगे। अब देखें आयतें ज़रा लंबी लंबी है, जो कि 3 लाइन्स, 3.5, 4 लाइन्स, 4.5 इस तरीके से है। तो वीडियो लंबी होगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वक्त दूंगी और मैं बिल्कुल तफसीली तौर पर समझाने वाली हूँ। अगर किसी को लगता है कि वीडियो बहुत काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, और तो देखिए ये अल्लाह की किताब है, इसमें वक्त देना चाहिए, है ना। इसको अगर आप सोचें इतनी ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो है, कौन देखेगा, कौन सीखेगा, तो ये गलत सोच है, गलत ये है। ठीक है, अल्लाह की किताब है, इसको सीखने के पीछे आप वक्त दें।
جب ہم یہ نہیں ہو رہے، جب سکھانے والا یہ نہیں ہو رہا ہے، سکھا رہا ہے، بیٹھ کر پڑھا رہا ہے، آپ لوگوں کو بتا رہا ہے، جب وہ نہیں یہ ہو رہا ہے تو آپ لوگ سیکھنے میں ایسا کیوں؟ تو سیکھیں، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قرآن کو خوش الحانی سے پڑھو جیسا کہ ہم نے اسے نازل کیا، اور ایسا پڑھنے والے بن جاؤ جیسا اللہ کو پسند ہے۔ تو چلیے نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی۔ مجھے بس دعاؤں میں یاد رکھے، چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولے۔ بیٹھے بیٹھے اگر اجر پانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو شیئر کریں، اسلامک جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو شیئر کریں۔ یقین جانیں اگر آپ کے شیئر کرنے سے کوئی ایک لفظ بھی سیکھتا ہے نا تو اس کا اجر آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے شیئر کیا تھا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔